Alright everyone, it's been a long time since we met. My name is JCRP and you're watching Kalakar Makerspace videos. In today's video, we're going to bend some metal. Recently, I purchased land and I've started construction over there, and I created a separate channel where I show the process of the construction, what I've been doing, everything over there. And this project will be something for the land. I'm going to build a water tank tower. So this water tank will be the first utility that goes there, because to create anything, to pour concrete, everything, we need water, and this is going to help. For anybody who wants to check out the other channel, I'll put a link in the description. Do check that out, and also at the end of the video I'll put a playlist so that you can view. Now let's go ahead and bend the metal. This is a pipe bending machine that I purchased recently, and it can bend material up to 3 inches. This is a 1 horsepower machine, and now we have to bend 30 mm pipe. I need a diameter of 5 feet, so that's 60 inches that we are going to do. We are first setting it up to see in which mold we have to do. We have set up the mold. This is a free turning arm, and while these two are motorized. We are bringing the machine outside because this 30 mm pipe that we are using is around 14 gauge, and it's quite thick, and I cannot go really hard on it by bending it very quickly. You can see already I have made a little bit of a bend over there, but that's how much I do, and my rooftop is not high enough that we can do it inside. We need an open space, so we just got it out here, and we'll set up the machine and do it over here. We're just looking for the length that we left off. Now we can start. नहीं, हमको लूज करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा. पकड़ रहे कितना है? 6 6.5. This is the circle that we have finally done. It's around 6 feet in diameter. We have to cut the straight ends over here and then do a welding so that we get the entire proper diameter. As you can see how much the piece has been bent by the machine. This is how much it bent it, and this is the straight part. You can see a good cross section of it. इतना इसको दबा देता है तभी जाके वो बेंड होता है. It's not a clean welding, but after sanding it, we're going to weld it again. This is the second circle that we are making. The first one is over here. It is around 6 feet, that's 72 inches. So I wanted this at 55 inches. Last time we measured it was 57. So I think I would have shaved around 2 inches. तो अभी ये 55 में होगा, तो वो सर्कल के अंदर अच्छे से बैठेगा. अभी ऐसे देखेंगे तो 2 लेयर हो जाता है, तो एक लेयर को बाहर लेना पड़ता है और एक लेयर को अंदर. It takes some really good force to push the pipe, क्योंकि इनिशियल फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगता है करने के लिए. उसके बाद मशीन टेक्स ओवर. I think this one itself is tough. I don't know the तीसरा वाला पाइप कितना मुश्किल होने वाला है करने में. देखते हैं.
द सेकेंड पाइप इज़ कम्प्लीट एंड वी जस्ट kept इट टू सी। अभी इतना गैप आ रहा है जो ठीक है, पर अभी उसके अंदर जो सर्कल आने वाला है वो हमको 3 फीट में चाहिए। इसको करने में ही बहुत मुश्किल हो गया। अभी देखते हैं और कितना प्रेशर डालना पड़ता है। वी completed the 3 concentric circles. We'll cut it now and then weld it together. Put off. By measuring the concentric circles, I have taken the measurements on this side, and I was able to get it in center. I am just putting a temporary putty on top so that nothing moves. We're making one last check and then we'll move ahead. अभी भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, पर बेसिक वेल्डिंग जो है वो हो गया है। अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है कि हमने क्या किया है। इफ़ यू टेक द सेंटर, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा हमने क्या किया है। सो ये जो बार जाता है वो हमने पूरा का पूरा लगाया है। देन हमने ये वाला कनेक्ट किया, तो यहाँ पे कट, वहाँ पे कट, फिर 45 डिग्रीज कट करके इसको जॉइन किया, इसको। अभी पूरा हम ये सीम पूरा वेल्ड करके क्लोज़ कर देंगे। हमने ऐसा पूरा लेंथ में लिया बिकॉज वी वांटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। यूजुअली लोग क्या करते हैं, बीच में कट कर देते हैं, पर हमने नहीं किया है। हमने एक्चुअली सी शेप में काछा निकाला है और उसमें वो सर्कल वाले एमएस पाइप को बिठाया है। वैसे हमने पूरा किया है सो दैट एक्चुअली इसको घुमा के दिखाता हूँ तो पीछे आपको एक सिंगल पीस दिखाई देगा। उससे क्या होता है, मजबूती बढ़ता है। अभी इस साइड से आपको अच्छे से दिखाई देगा कि यहाँ से शुरुआत होता है और यहाँ पे विदाउट अ कट दिख रहा है। पर हमने क्या किया है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन निकाला सी शेप में और उसमें जाके बिठाया है। एवरीथिंग हमने वैसे ही किया है ताकि मजबूती मिलेगा यहाँ पे। और एक देखिए,
तो इस साइड पूरा सीम को मैंने वेल्ड कर दिया है, ऐसे दिखने वाला है। ऑफ कोर्स ग्राइंडिंग करना है। अभी पूरा वेल्डिंग ख़त्म कर दिया, पर यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन किया है। ये किस चीज़ के लिए एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं दिखाता हूँ। अभी इनकम्प्लीट है, आज दिन ख़त्म हो गया, तो हम कल ऐसा और एक आर्च बनाएंगे। दैट्स कंप्लीटेड। अभी तक जैसा आया है को पसंद आया है। कंप्लीट होके अभी पेंटिंग करना है, उसके बाद विल गो टू द साइट और वहाँ पे इंस्टॉलेशन देखेंगे। यहाँ पे अभी मेजरमेंट कर रहे हैं। जो आपने देखा वीडियो में, जो हमने सर्कल बनाया उसका माप लिया है और यहाँ पे अभी गड्ढा बना रहे हैं। सो यहाँ पे पोल्स बिठाएंगे, फिर उसके ऊपर टैंकर बिठाएंगे। ये 4 पोल, 1 2 3 और 4, ये सब वेल्ड कर दिया है। ऊपर पे ऐसा 5 इंच पे 5 इंच का एक प्लेट लगाया है, ताकि जब हम सर्कल को बिठाते हैं तो अगर थोड़ा भी मिसमैच रहेगा तो वो हेल्प करेगा। और नीचे यहाँ पे हमने ऐसा होल पास मारा है सब जगह पे, सो दैट कंक्रीट उसको अच्छे से पकड़े और बाहर आने मत दे। एंड इसका लेंथ है अराउंड 10 फीट। तो जब वहाँ पे जो गड्ढे मार रहे हैं वहाँ पे जब जाता है तो 2 फीट नीचे जाएगा तो 8 फीट ऊपर रहेगा, और 8 फीट के ऊपर हमको टैंक और लगाना पड़ेगा। अभी जो घिस रहा था ये इसलिए कि ये थोड़े दिन बाहर था तो रस्ट हुआ है, और रस्ट को निकालेंगे। फिर हम पूरा पोंछ के निकाल के विल पुट एचर सॉल्यूशन जो अच्छे से उसको प्राइम करता है। उसके बाद प्राइमर डालेंगे, उसके बाद कलर डालेंगे, और हम सारे एंगल्स को पहले कलर करते हैं, उसके बाद कंक्रीट में डालते हैं, ताकि वहाँ पे रस्ट नहीं होगा। यस्टरडे इट बिकेम लेट नाइट जब हमने कंक्रीट डाला, पर हमने सक्सेसफुली वो 4 पोल्स को रख दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंक्रीट अच्छे से सूखा है, वेरी नाइस। अभी इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बीच में जो सपोर्ट्स देना है वो अटैच करेंगे। फिर आई एम थिंकिंग कि नीचे एक छोटा सा टूल रूम जैसा रहेगा, सो दैट बार बार हमको हमारे टेम्पो से चीज़ें निकालना पड़े और यहीं पे डाल सकते हैं। सो ये पत्थर यूज़ करके हम अभी एक टूल रूम बनाएंगे। ये जो सर्कल है ये अभी हम हमारे साइड पे उतार रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना गॉर्जियस ब्लू में हमने पेंट किया है इसको। आई लव दिस कलर। और आगे जो वो सर्कल्स है, वो सर्कल्स बैठने की जगह है और वो टंकी बिठाने की जगह है। पूरा 2 कोट पेंट दिया है। एज़ यूजुअल पेंट करने से पहले हमने एचर पेंट, फिर K1 प्राइमर, ये सब मार के इसको प्रिपेयर किया है, सो दैट थोड़े दिन जाएगा। दिस इज़ द सेम प्रोसेस जो गाड़ी पेंट करने से पहले हम करते हैं। देखो ये वाला आगे आना है, तो हम ऐसा रखेंगे। ओके ना, क्या पीछे पीछे बोल रहे हो? वो सर्कल बैठना है। हाँ, ऐसा ऊपर उठाना है। हाँ, अभी ये ऊपर ले सर। नहीं, तेरे को ऊपर पकड़, वो नीचे पकड़ेगा। तेरे सर के ऊपर जाना चाहिए। इधर किसके ऊपर? तुम बैठो, 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 नीचे बैठो, बैठो, बैठो। पीछे रखना, तू पीछे रख। हाँ, मैं पीछे क्या करूँ? इधर आगे। वो एंगल है। चलो, उठाओ, चलो, चलो, चलो। सेकंड वाला रिंग पे बैठो रे। चल रे, तू किधर घुमा रहा है? ये इधर घूमना चाहिए, ये इधर। ये ठीक है, ये तो पोजीशन है। ठीक है, ये देख, इधर आना चाहिए। वो पीछे ले आ। कुमार, तू पीछे उठा उसको। कुमार, इधर। The struggle was actually bringing this platform square. अभी भी स्क्वायर नहीं हुआ है, पर ऊपर तो हमारा वाटर टैंकी का सर्कल को बिठा दिया। एंड जैसा हमको चाहिए था वो बाहर बैठने का जगह यहाँ पे आ चुका है, और टंकी बिठाने का जो सर्कल है वो 4 पोल्स के ऊपर बैठ गया है, 1 2 and 3 and 4। बट एज यू कैन सी, वहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, our measurement is not perfect,
वो पोल के ऊपर बैठा भी नहीं कॉर्नर वाले में, और वहाँ पे हमने कुछ सपोर्ट रखा है। सो दो इसके ऊपर खड़ा भी नहीं हुआ, बिकॉज जब हम पोल कंक्रीट में सेट कर रहे थे तब हमने ट्यूब लेवल पकड़ा नहीं, उसके वजह से पीछे वाले दोनों में वो बैठा भी नहीं है, आगे दोनों में ही बैठा है। बट इट्स ओके, वी कैन पुट सम tubes at the back and do that. Even this place is not perfectly square, you can see from here. जब ट्यूब लेवल रखते हैं तो बराबर दिखता है, पर सॉरी ट्यूब लेवल बोल रहा, स्पिरिट लेवल रखते हैं तो बराबर दिखता है, बट when we see it just like that it is not fine, and I have absolutely no idea क्यों ऐसा है, but the structure is fine and थोड़ा स्टेबल है। जब रूम बनाते हैं तो ये गलती दब जाएगा, रूम के अंदर ही दिखेगा। तो इट्स ओके, नाउ we'll go ahead and finish the building and cover the top.